Hello students. So in this video we'll talk about vector operations. Operations means particularly in this video we'll talk about vector additions, and most probably in the next video we'll talk about subtractions of vectors. तो पहले ये कहना है कि as we know the normal additions done in mathematics, but the fact is that since vectors are having both magnitude and direction, so these vectors cannot be added by applying the methods of algebraic operations. मतलब algebraic operations normal addition और subtraction जैसे हम लोग numbers के टाइम पे करते हैं वो सब तरीका is not applicable in case of vectors, क्योंकि जैसे कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में बस इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर देने से रिजल्टेंट नहीं आएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक स्टोन रखा हुआ है तो किसी एक आदमी इसको एक थ्रेड के जरिए इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और दूसरा आदमी इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में रिजल्टेंट कैसे होगा? हो सकता है कि ये जो स्टोन है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए वी कैन नॉट अप्लाई नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशंस इन केस ऑफ वेक्टर्स. So for that, first we will talk about vector additions in case of parallel or vectors acting along the same direction. जैसे कि मान लो दो वेक्टर, these are two vectors, okay? Now पहले ये बताओ कि what is the angle between these two vectors? मतलब एक्चुअली क्या है, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज जीरो. व्हाई इट इज जीरो? क्योंकि वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, ये डज नॉट मैटर करता है. व्हाट मैटर्स इज दैट वेदर डायरेक्शन इज सेम और नॉट. जैसे कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसका भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट मींस व्हाट, बोथ दिस वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन दिस टू इज जीरो. जैसे कि इस वेक्टर को एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड सेम रखे, हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, तो दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं. सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर्स whatever be the magnitude, if they are acting along the same line, we can say that these vectors are parallel vectors or vectors acting along the same direction. So first we'll consider the when vectors are acting along same line, same direction, okay? तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दो वेक्टर. लेट दिस इज वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर, दिस इज स्मॉल वन, दिस इज वेक्टर बी. सो दिस टू आर वेक्टर्स. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? सिंस direction of both these vectors is same, simply we have to add their magnitudes. Magnitude of A plus magnitude of B, it will give you resultant vector R vector. And what will be the direction of the resultant vector? This will be same as that of the individual given vectors. तो अगर A vector और B vector को मुझे ऐड करना है, तो since both these vectors are acting along the same direction, simply we will find the resultant is equals to this. This is R वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B. तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर. तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे कि when two vectors are acting along the same direction, resultant vector R vector equals to A vector plus B vector will have magnitude equal to the sum of magnitudes of individual vectors A vector and B vector. A vector और B vector के magnitude के sum will be equal to the magnitude of this resultant vector. Now what will be the direction of this resultant vector? The direction of resultant vector
will be the same as that of the given vectors a vector and b vector। मतलब a वेक्टर b वेक्टर किसी के भी डायरेक्शन के साथ मिलजुल रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का, क्योंकि a और b दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है इसलिए। सो here is the fact that if two vectors are acting along same direction or parallel direction, then we can say that resultant of these two individual vectors will be nothing but the addition of the magnitude of individual vectors. This will be the magnitude of resultant vector, and the direction of the resultant vector will be equal to that of the either vector. Okay, so this is how we add when two vectors are acting along same direction. Now we will talk about if two vectors are parallel but they are acting opposite to each other. Okay, when two vectors are acting opposite to each other. Okay, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे दिस इज वेक्टर p, ओके, एंड अनदर वेक्टर व्हिच इज स्मॉलर comparison to p, let this is q vector. So here we see that p is acting along right and q is acting along left direction. Okay, so in that case what will be the resultant when two vectors are acting opposite to each other, then the magnitude of the resultant vector will be equal to the, क्या हो जाएगा, जैसे कि इन दोनों का रिजल्टेंट, तो एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक दूसरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस टू, isn't it? Will be equal to the difference in magnitude of the two given vectors. Now what about the direction? Direction कौन सा रहेगा resultant vector का? The direction will be equal to that of the given greater vector. मतलब इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा this along this direction will be the direction of resultant. मतलब यहाँ पे जैसे कि p is greater than q, देखने से हम लोगों को पता चल रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि magnitude of p is greater than that of q, तो obviously resultant vector का direction कौन सा रहेगा, direction रहेगा equal to that of the bigger vector, that is p vector. तो हम लोग यहाँ पे resultant, जैसे कि मान लो ये 5 मीटर along east और ये 3 मीटर along west, तो resultant ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 5 minus 3 is equals to 2, और इसका डायरेक्शन था ईस्ट, तो ईस्ट का डायरेक्शन रहेगा मतलब 2 मीटर along ईस्ट, ऐसा रिजल्टेंट रहेगा. सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पी वेक्टर. ऐसे तो हम लोग प्लस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिशंस, राइट. तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कि प्लस और जैसे कि इसका डायरेक्शन उल्टा डायरेक्शन है, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस क्यू वेक्टर. तो अल्टीमेटली क्या रहा, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर. ओके, टू वेक्टर्स, the direction of resultant vector will be along the direction of
लार्जर वेक्टर, ठीक है। जो बड़ा वेक्टर रहेगा उसी की डायरेक्शन रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली इन दिस केस वी विल से दैट द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर और इफ द वेक्टर्स आर ऑपोजिट और अलोंग द सेम डायरेक्शन। पर यहाँ पे इंक्लाइंड वेक्टर के बारे में हम लोगों को अब तक कुछ पता नहीं चला। आई मीन इफ टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड, दैट इज इफ द वेक्टर्स डिसाइड्स thereby making an angle between them। तो अगर जैसे कि मान लो ऐसा सिचुएशन है कि दो वेक्टर दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में ये सब का रिजल्टेंट क्या रहेगा वो डिटरमाइन करना है। तो ए बी में हम लोगों ने देखा है व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल बेसिकली whether if it is unidirectional or opposite directional. Now in this third part we'll talk about when two vectors are inclined at an angle, okay। Now when vectors are inclined, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं। वन इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द अदर वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखना है कि इन दोनों में से तुम्हारा टर्मेंट या मिड टर्म या काउंसिल एग्जाम कोई भी एग्जाम में इन दोनों में से तो एक को आना ही है। मतलब इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता सीख लेना चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम पे सोचने के लिए ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना किया जाए वहाँ पे। मतलब इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस और सीखना दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। और यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखना है हमें, स्टेटमेंट, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर represented by both magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle taken in order, then the third closing side of the triangle in reverse order gives magnitude and direction of the resultant वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, जैसे कि मान लो पहले दो वेक्टर दिया हुआ है where these vectors are not parallel vectors, so this is our p vector, q vector and this is vector p, okay। So we see that it is very clear that these two vectors are not parallel vectors, okay। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इन दोनों वेक्टर को ऐसा प्लेस किया जाए कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहे। इन दैट केस वी विल सी दैट these vectors are making an angle, that means these two vectors are inclined by a certain amount of angle theta, okay। जैसे कि मान लो दिस इज वेक्टर q और p को हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसा प्लेस कर दिया कि ये हो गया हमारा p वेक्टर। सो इन दैट केस इट इज वेरी क्लियर दैट देयर इज एन एंगल थीटा एंड इट इज फिक्स्ड फॉर दिस गिवन पार्टिकुलर पेयर ऑफ वेक्टर्स, ओके।
तो according to this statement, you see here it is given that if two vectors are represented by both magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle taken in order, मतलब order continue रखना चाहिए। जैसे कि देख लो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। अगर मान लो ये p वेक्टर और यहाँ से दूसरा वेक्टर q वेक्टर आ गया होता, देन हम लोग बोल सकते थे कि yes these two vectors are in order। जैसे कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस इज, मान लो थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज आवर p वेक्टर। और ऑर्डर को सेम रखने के लिए q को इसका टेल में नहीं, इसका हेड में प्लेस करना है। p का हेड में q को प्लेस करना है। जैसे कि q वेक्टर को उठा के लेके मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर q वेक्टर। ठीक है, हम लोग वेक्टर को एंगल और मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रख के किसी भी जगह पे डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर q वेक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इफ यू क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स, तो हम लोग यहाँ पे अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसका थर्ड साइड रहेगा। अभी थर्ड साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये जो थर्ड साइड निकल के आया है, दिस इज एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू p प्लस q। अभी बात ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट में दिया गया है। Then the third closing side of the triangle in reverse order, मतलब जैसे देखो इन दोनों का ऑर्डर है this is continuous, this। अभी इसका रिवर्स कैसा है, जैसे कि इन दोनों का कंटिन्यू है, तो इन दोनों का जैसे कि ये आने से ऑर्डर मेंटेन करेगा और ये उल्टा जाएगा तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। मतलब इन दोनों आर का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन दे देते हैं तो ये ऑर्डर में आ गया होता तीनों वेक्टर, पर इसका क्या है, रिवर्स होना चाहिए। मतलब p q कंटिन्यू कर रहा है और ये रिवर्स कर रहा है। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कि हम लोग पॉइंट्स के नाम ऐसे दे देते हैं। सो दिस इज o, दिस इज A, B, और इसके यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ऑन एक्सटेंडेड OA। OA को थोड़ा एक्सटेंड किया और वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये रह गया हमारा पॉइंट C। ओके, तो बस यहाँ पे ड्राइंग खत्म, अभी लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे और एक बात बाकी रह गया कि एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, दैट इज p and q, दिस इज द एंगल नाउ। ओके, and this is our resultant. Now later you will be also asked to find what is the angle made by this resultant with vector p. तो p के साथ रिजल्टेंट वेक्टर p क्या एंगल बना रहा है वो हमें नहीं पता है, तो बाद में देखेंगे कि हम लोग किसी एक फॉर्मूलेशन के जरिए हम लोग ये भी मेजर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस एंगल का नाम ले लेते हैं, दिस इज बीटा। ओके, तो अभी हमें लिखना है कि ड्राइंग पोर्शन में लेट अस ड्रॉ BC perpendicular to extended OA, क्योंकि ये पोर्शन पहले नहीं था, हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है OA वेक्टर को, टू एक्सटेंडेड OA वेक्टर। ओके, तो लेट B के बारे में भी बोल देते हैं, लेट बीटा be the angle made by the resultant vector with OA वेक्टर, और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज P वेक्टर। ओके, तो ये अभी क्या हो गया, ट्राइंगल OBC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट।
तो अभी हम सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इससे पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हियर हम लोग मान लेते हैं दिस OA वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर। और हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वेक्टर साइन देने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली इसको पी भी बोल सकते हैं। ओके, सिमिलरली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड जब हम लोग बोल रहे हैं तो सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इक्वल्स टू आर। सिंपली मतलब हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे सिंपली वी विल बी कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। ओके, नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल क्या है, ओ बी सी। ओके, तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल दिस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग चेंज करेंगे कि दिस ओ सी इज नथिंग बट ओ ए प्लस एस सी, राइट। तो ओ ए प्लस एस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर फॉर्मूला हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए एस सी प्लस एस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, देखो एस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज एस सी स्क्वायर और दिस इज बी सी स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन से दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये पर्सन भी इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से मिल रहा है कि फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी हम लोगों को मिल रहा है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लोग ए बी के जरिए रिप्लेस कर देंगे। तो ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए सी प्लस दिस इज ए बी स्क्वायर। अभी बात यह है कि देखो ओ ए इज नथिंग बट पी वेक्टर। ओके, देन 2 ओ ए पी वेक्टर ए सी और ए बी स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू वेक्टर। तो ये बाकी रहेगा ए सी। व्हाट इज ए सी, ए सी का वैल्यू क्या है और ए सी कौन सा पर्सन है ये। तो ए सी का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है, हम लोग ट्रायंगल इससे कंसिडर करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी फिर से कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, sin theta is equals to what? Some people had perpendicular by hypotenuse, that is BC by AC. BC by AC. तो यहाँ पे BC का वैल्यू भी हमें पता नहीं है, so this is not going to help us. Let's find the value of cos theta. Okay, cos theta equals to curly brown hair, base by hypotenuse, मतलब AC by AB, AC by AB. तो ये शायद फायदेमंद हो जाएगा क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। और तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या मिल रहा है, दिस इज हियर AC इज इक्वल्स टू AB cos थीटा और AB का वैल्यू हमें पता है, दिस इज नथिंग बट Q। तो मतलब क्या हो गया, AC इन टर्म्स ऑफ AB cos थीटा, AB मतलब Q cos थीटा। ठीक है, तो OA स्क्वायर प्लस 2 OA और AC को रिप्लेस कर देंगे AB cos थीटा प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सब का वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि ओ बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू पी, ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो पी स्क्वायर 2 ओ ए इक्वल्स टू पी,
फिर ए बी इज नथिंग बट क्यू कॉस थीटा प्लस ए बी दैट मीन्स क्यू स्क्वायर. तो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos theta or square root. So this is the expression for resultant of these two vectors p and q. Okay, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट और इसी चीज़ को हम लोगों को एग्जाम्स में प्रूफ करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 केसेस कंसीडर करेंगे, फिर अल्टीमेट एक्सप्रेशन में हम लोग बीटा का भी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. ओके, तो लेट मी इरेज फर्स्ट. तो हमारा एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. अभी केस 1. ओके, हम कंसिडर करेंगे कि बोथ दिस वेक्टर, सपोज इफ बोथ वेक्टर p and q are acting along same direction, when angle between p vector and q vector is 0 degree, that is parallel vectors. Okay, पैरेलल वेक्टर्स मतलब दोनों वेक्टर जब पैरेलल रहेगा तब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0. दैट मीन्स ये वेक्टर p, जैसे कि ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर, अगर ये इस लाइन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा. और व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दिस टू, दिस इज इक्वल्स टू 0. जैसे कि हम लोगों ने जस्ट एडिशन का स्टार्टिंग में किया था कि व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर्स, इन दैट केस थीटा इक्वल्स टू 0 degree. So if we replace this value in this equation, we will have r is equals to square root p square q square 2p q cos 0 degree. और cos 0 degree equals to how much? Cos 0 equals to 1. Cos 0 degree equals to 1. तो क्या हो जाएगा, p square q square 2pq, बस हो गया. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट p प्लस क्यू होल स्क्वायर. अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, then the resultant is nothing but magnitude of resultant is nothing but the addition of two different vectors मैग्नीट्यूड. ओके, तो ये रहेगा जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था. नाउ केस 2. व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, दैट इज एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तब हम लोगों ने क्या किया था, देख लेते. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, और cos 180 इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू -1. तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2pq, और दिस इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू होल स्क्वायर. तो अल्टीमेटली क्या बचा है, दिस इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट. ओके, सो दिस इज r. जैसे कि हम लोगों ने देखा था पहले भी कि व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, देन देयर रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. केस 3. When vectors are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर मतलब क्या है, जैसे कि एक वेक्टर ऐसा एक्ट कर रहा है एंड दूसरा इज एक्टिंग लाइक दिस. ओके, दैट इज एंगल कितना रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, तो विल हैव r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर
प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 90 डिग्री और cos 90 इक्वल्स टू हाउ मच, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, दिस इज स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस आर 3 डिफरेंट केसेस। अभी लेट बीटा बी द एंगल made by the resultant with p vector। ओके, तो बीटा हम लोगों ने लिया है। नाउ वी विल बी कंसीडरिंग tan बीटा इक्वल्स टू टर्न परमानेंटली बैक, दैट इज परपेंडिकुलर BC बाय बेस OC। तो अभी हमें क्या करना है कि OC को स्प्लिट करना है। तो OC को लिख सकते हैं हम लोग OA प्लस AC। ओके, अभी ट्रायंगल ABC को कंसीडर करके हम लोग BC का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसका वैल्यू हमें पता है नहीं। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल ABC यू कैन से दैट अभी साइन थीटा क्या है, सम पीपल हैड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। तो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज AB साइन थीटा, और AB क्या है, AB इज नथिंग बट क्यू। तो बस हो गया। तो अभी हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ BC वी कैन राइट AB साइन थीटा, और OA इज नथिंग बट P वेक्टर। तो OA प्लस AC। अभी AC क्या है, AC का वैल्यू भी यहाँ पे है नहीं डायरेक्टली, जैसे कि पहले हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, फिर भी लेट्स डिटरमाइन इट अगेन। हम लोग यहाँ पे यानी कॉस डिटरमाइन करेंगे। अभी कॉस थीटा currently brown hair based by hypotenuse that is AB, or AC equals to what, this is AB cos theta। ओके, तो AC को हम लोग लिख लेंगे AB cos theta। अभी बहुत ही सिंपल है, क्या है, जैसे कि AB is equals to what, AB is nothing but Q sin theta divided by OA equals to P and AB again Q cos theta। Okay, this is equals to what, tan beta। Now we'll say that therefore beta equals to what, tan inverse or Q sin theta divided by P plus Q cos theta। So this is the final expression, or if we follow this equation, simply if the given magnitude of the given vectors are simply using this equation, if we have the magnitudes of vector P and Q and the angle between them, that is theta, then easily we can find from this equation what will be the angle between this resultant vector R vector and P vector। Okay, so this is about the triangle of vector addition। Now in the next video we will talk about the parallelogram law of vector addition। Okay, बस ये मतलब ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन रहेगा, वेरी सिंपल।